Okay. And now let's start with the revision online class on the topic of application of differentiation. You may purchase the book, one of the books like of by J.K. Tukral sir or maybe by Dr. S.K. Sharma and Gurmeet Kaur madam. Both are the equally good books for the BCom honors course in the Delhi University. So now, for the application of differentiation, before starting with the questions, let me give you a small introduction about the differentiation. We have done all the things in detail, or it's there in the books, you can read it, but till that, let me revise it so that you will be able to solve the question easily. See, if we have some function like fx y equals to fx, where delta x is change in the variable. If x changes from 4 to 6, then it means x is equals to 4 minus 6 minus 4 is equals to 2. Here delta x may be the positive or may be negative, whatever it is. Right? So delta y is change in the variable. Delta x का जैसे change हो रहा है 6 पे था, 6 से 4 पे आ गया तो 2 हो गया. ऐसे y भी जो भी change हो रहा है variable y में, right? तो y delta y depends on the value of x and delta x. So it means का function क्योंकि हमारा function है y is the function of x, right? समझो थोड़ा सा अभी. I will explain you with the graph also, but simply understand the concepts. Suppose that they are the change, delta x change हुआ है in x, है ना? एक x था उसमें delta x change हुआ है, so that the new value of x becomes the x plus delta x. तो हमारा function change हो जाएगा y का. Y would be the function of x plus delta x. Here delta x means change in y is equals to function of x delta x minus fx, क्योंकि पहले था fx तो बाद में हो गया है x प्लस डेल्टा एक्स. जब डेल्टा एक्स चेंज हुआ, ठीक है, हम ये कह सकते हैं द रेशियो ऑफ डेल्टा y एंड डेल्टा x equals to the average rate of change of y with respect to x over the interval of x to x plus delta x. I will explain you in detail with the graph also so that you can understand the concepts. First of all, limit of the average rate of change of functionality y equals to fx as delta x equals to 0 to be instantaneous or the point of simply rate of change of y with respect to x. ठीक है, मैं थोड़ा सा इसलिए जल्दी थोड़ा सा रीड कर रही हूँ. आपको मैक्सिमम ऑफ द स्टूडेंट्स दोज हु हैव डन इन 11 12th differentiation with maths, so they would be able to understand. Therefore limit क्या होगी? When x is leading towards the 0 or tends towards 0, delta y upon delta x equals to limit when x equals to 0 is f. हमने x डेल्टा x की जगह क्या लिख दिया जो हमने अभी आपको बताया जो चेंज हुआ था, राइट? फंक्शन ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस फंक्शन ऑफ x अपॉन डेल्टा x. से हम ये कह सकते हैं जब इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, जो इंस्टेंटेनियस चेंज हुआ है, जब लिमिट हम बिल्कुल 0 की तरफ लेके जा रहे हैं, बहुत कम कर देते हैं x को, जो हमारे डिनोमिनेटर था उसे कम करते जा रहे थे, तब हमारा जो चेंज होता है उस पॉइंट पे इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज मींस एक किस पॉइंट पे चेंज हुआ है तो वो कितना है, उसको हम बोलते हैं डेरिवेटिव के तरीके से डिफरेंशिएट करते हैं dy अपॉन dx. क्या मतलब? लिमिट वेयर डेल्टा x इज लीडिंग टुवर्ड्स द 0 एंड डेल्टा y अपॉन डेल्टा x, राइट? ओके, लेट मी एक्सप्लेन लिटिल बिट अबाउट यू विद द ग्राफ, है ना? मैं थोड़ा सा ग्राफ से एक्सप्लेन करती हूँ. लेट्स टेक ब्लैक. Yes, I'm making a graph. This is y-axis. मेरी y-axis पे हम ले रहे हैं output, and on the y-axis I am taking the input. Suppose I am taking the input. Let me take some graph. है ना, मैंने ग्राफ लिया, ये मैंने वैल्यू मान ली है, कोई भी वैल्यू x मान ली यहाँ पर. मैंने एक ऐसे ले लिया, जस्ट होल्ड ऑन, सॉरी, मैंने एक वैल्यू ले ली, ये वाली मेरी वैल्यू हो गई x. यहाँ पे मैंने इसको x बोल दिया. ये अगर मेरा यहां से यहां तक मेरा डिस्टेंस अगर h है, ठीक है, तब मेरा ये हो गया x प्लस h, ठीक है.
अगर ये मेरा यहाँ x था तो over here I was getting the output fx. If this was my x plus h, over here I would be getting the output क्या होगा x plus h. हम h को डेल्टा x भी जो मैं मान के चली थी, स्मॉल चेंज जो भी चेंज है ना, तो हम ये कह सकते हैं इनपुट. अगर मैं आपसे इसका स्लोप निकालने को कहूँ, स्लोप क्या होता है सबको मालूम है, y2 अपॉन y2 माइनस y1 x2 अपॉन x2 माइनस x1, राइट. इसके अंदर फंक्शन क्या है, हमें y2 मालूम है, यहाँ पे ये y1 है, ये दिस इज y1, दिस इज y2, दिस इज x1 x2. इसमें y2 क्या है, आई कैन राइट फंक्शन x प्लस h माइनस फंक्शन ऑफ fx. ठीक है, x2 क्या हो गया, x प्लस h माइनस x. क्लियर हो रहा है, ये तो हमारा हो गया x प्लस h माइनस fx. एंड व्हेन वी डिवाइडेड, x से x कट जाएगा, ओपन करेंगे तो नीचे हमारे पास सिर्फ h बच जाएगा, है ना. जस्ट इमेजिन इफ, लेट मी राइट इन दिस वे, इफ वी मेक h वेरी स्मॉल, मैं h को बहुत स्मॉल मान लेती हूँ, देन दोस 2 पॉइंट्स, कौन से 2 पॉइंट्स, ये वाला, ठीक है, दोस पॉइंट्स will be pretty much in the same spot. कैसे, सोच के देखो, ये h मेरा कम होता जाए, मेरा h को मैं कम करती जाऊं, अभी इतना और कम हो जाए तो ये वाला पॉइंट यहाँ आ जाएगा, ये वाला इस तरफ मूव करने लगेगा, और कम कर दूं, यहाँ पर आ गया, और करती है तो ये बिल्कुल क्लोज आ जाएगा. मीन्स दे आर प्रिटी मच इन द सेम स्पॉट. Getting my point? So I can say, so it will give us slope at a single point, जिसको हम डेरिवेटिव बोल रहे हैं ना, is what all these becomes, and h gets what we call it as close to zero, है ना. इतना जीरो की जितना भी हमें लगता है ह्यूमनली पॉसिबल है, एग्जैक्टली जीरो तो कर नहीं सकते, बहुत ज्यादा एक्चुअली, एंड विदाउट एक्चुअली बीइंग जीरो थ्रो, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड द लिमिट्स भी बोलते हैं हम इसको, इसीलिए. जैसे हम ये कहते हैं ना, सॉरी, ये बनाया, अगर मैं इसका वही वो ले रही हूँ, मेरा ग्राफ बना, इसके ऊपर मेरा ये ही पॉइंट है, तो आप देखोगे अगर मैं ये पॉइंट मान रही हूँ तो मेरा ये वाला पॉइंट बिल्कुल आपका, दोनों एक दूसरे हो गए, तो यहाँ पे एच का कुछ है ही नहीं डिफरेंस, इतना स्मॉल डिफरेंस है एच का कि हमें पता ही नहीं चल रहा है. इसको हम एक्सप्लेन करने के लिए हमने जो आपको भी बताया कि हम इंस्टेंटेनियस वेरिएबल बोल देते हैं या रेट ऑफ चेंज बोल देते हैं, वो dy बाई dx है. ठीक है, आई थिंक इज क्लियर, लिटिल बिट, है ना. तो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चंस हैं, उससे आपको बहुत पूरी क्लैरिटी आ जाएगी व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन, और कैसे सॉल्व करना है. ये तो जिनको कॉन्सेप्ट्स नहीं पता था 11 12 में, बिल्कुल नहीं करा था, बहुत डिटेल में नहीं बताया, ओनली जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड कि हम क्या कर रहे हैं, ऐसा नहीं लगे हवा में क्या चीज कर रहे हैं. नाउ कम टू द क्वेश्चन. फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ fx equals to 2x power 2 minus 12x plus 45 with respect to x. Now you have to evaluate the rate at x equals to 4. जब x equals to 4 है तब हमें मालूम है ये हमारा फंक्शन है, हम इसको y मान रहे हैं, तो हम इसको कह सकते हैं dy अपॉन dx. dy बाई dx निकालेंगे तो हमारे को पता चल जाएगा कितना रेट ऑफ चेंज हो रहा है, कितना चेंजेस हो रहे हैं, हम निकाल सकते हैं इसको सिंपल. डिफ्रेंसिएशन हमने पहले कर ही रखा है, 4x माइनस 12, राइट. मुझे पूछ रहे हैं इसमें व्हेन x is equals to 4, now put the value dy by dx, कितना इंस्टेंटेनियस चेंज होगा, कितना होगा जब हमारा 4 माइनस 12, 4 4 16 माइनस 12 is 4.
आई थिंक इज क्लियर। चलिए, आई थिंक क्लियर है ये, है ना। अच्छा, एक चीज और बता देती हूँ, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शंस आल्सो, फिर अभी नेक्स्ट क्वेश्चंस में आपसे पूछेंगे। इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन, डिक्रीजिंग फंक्शंस क्या होता है, जब भी कोई टर्म हमारी विद द टर्म अपवर्ड स्लोपिंग है ना, अपवर्ड स्लोपिंग is also sometimes used as an increasing function. ठीक है, लेकिन जो आप कह सकते हैं टर्म डाउनवर्ड स्लोपिंग, इसकी स्लोपिंग डाउनवर्ड है, दैट इज समटाइम्स यूज्ड एज अ डिक्रीजिंग फंक्शन। सो डोंट गेट कंफ्यूज, ये डिक्रीजिंग फंक्शन पूछ रहा है, कभी अपवर्ड स्लोपिंग पूछ रहा है, कभी इंक्रीजिंग पूछ रहा है, समटाइम डाउनवर्ड आल्सो। So when they are asking you downward sloping, it means they are asking about the decreasing function. If they are asking you about the increasing function, it means they are asking a little bit about the upward sloping. One and the same thing. Now, test क्या है इसका? Test for increasing. मैं increasing को ऐसे arrow लगा के upward ऐसे short में लिख रही हूँ. Increasing and decreasing functions. Right? So if what the function is, लिखते हैं function. If f(x) is more than 0 for all x in an interval, सपोज हमारा इंटरवल ए और बी है, ए और बी के बीच में जो भी वैल्यूज एक्स की आ रही हैं, एंड वी गेट द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन इज मोर देन 0, हमारा एफ एक्स फर्स्ट डेरिवेटिव जो है मोर देन 0 आ रहा है, मीन्स पॉजिटिव आ रहा है, देन एफ इज इंक्रीजिंग ऑन ए एंड बी, हमारे इस इंटरवल में इंक्रीजिंग है, सिंपल। नाउ इफ अगर हमारा डेरिवेटिव जो है एक्स है लेस देन 0 आ रहा है, मीन्स नेगेटिव आ रहा है, किसके लिए? सेम कंडीशंस फॉर ऑल एक्स इन एन इंटरवल, इंटरवल कोई सा भी हो सकता है, ए एंड बी, देन एफ इज डिक्रीजिंग ऑन ए एंड बी। आई थिंक इज क्लियर, क्लियर हो गया। ये हमारे को टेस्ट चेक करना है कि हमारा इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यस, फाइंड द इंटरवल्स ऑन विच द फंक्शन एफ एक्स इक्वल्स टू, मैं फंक्शन लिख लेती हूँ, एफ एक्स इक्वल्स टू 2x3 पावर 3 9x पावर 2 प्लस 12x, राइट। अगर ये फंक्शन है एंड इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, ये हमसे क्वेश्चन में पूछ रहा है इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, ये फंक्शन जो भी है ना। फाइंड द इंटरवल्स एंड वी आर सपोज टू कैलकुलेट द इंटरवल्स। चलिए, फंक्शन है, हमें मालूम है इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग पूछ रहा है, इंटरवल्स पूछ रहा है, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें डेरिवेशन निकाल लेना है, डेरिवेट कर दो उसको, डिफरेंशिएशन, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, 3 2 6 एक्स स्क्वायर माइनस 18x प्लस 12, इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, इजी हो जाएगा। एक्स 6 एक्स स्क्वायर माइनस बस इसको सॉल्व कर लीजिए, सॉल्व कर लेंगे तो इसे एक्स स्क्वायर का माइनस, इधर माइनस 2x प्लस x आ जाएगा, करना सब मैं सॉल्व कर देती हूँ, नहीं तो इजी है, 2x माइनस 1x प्लस 2, आपका आ गया 6x, सॉल्व करना भी सिखा देती हूँ अगर नहीं आता 1%, ये 6x माइनस 1 x माइनस 2, राइट। इजी के लिए, सॉल्व करने के लिए मैंने इसको डिफरेंशिएट करके सिंप्लीफाई कर लिया। अब मुझे डिटरमाइन करना है
मेरा नेक्स्ट स्टेप है डिटरमाइन व्हेन f dash x is positive, right? And when f slash x is negative. हमें यही पूछना, दो चीजें पूछी गई हैं, कब पॉजिटिव है कब नेगेटिव है फंक्शन। अगर मुझे साइन को डिटरमाइन करने के लिए क्या करते हैं, डिटरमाइन द साइन ऑफ एफ डैश एक्स बाय कंसिडरिंग द इंटरवल्स, है ना, विच आर डिटरमाइंड बाय द रूट्स ऑफ दिस, राइट। इसको कैसे करते हैं अब आप देख लो। मैं अगर इसको सॉल्व इक्वल्स टू 0 पुट कर दूंगी, कि रूट्स निकल आएंगे। मेरे x की वैल्यू क्या आ सकती है, 1 आ सकती है और 2, है ना। 6 की वैल्यू 1 एंड 2 आ गया, दो वैल्यूज आ सकती है। तो नाउ आई विल चेक इट ऑन द लाइन। सपोज मेरी मेरी नंबर लाइन बनाई मैंने। नंबर लाइन में मेरा इस पॉइंट को मान लो 1, इस पॉइंट को मान लो 2, राइट। अब मुझसे पूछ रहा है कि भाई, अब मुझे चेक करना है कि ये वाले मेरे दो पॉइंट्स हैं जहां पे मेरा 0 आना ही है डिफरेंशिएट, मुझे ये तो पता है ना। डी वाई बाई डी एक्स 0, इधर भी डी वाई बाई डी एक्स 0, क्योंकि ये तो मेरे क्रिटिकल पॉइंट से स्टैंडिंग पॉइंट्स आए हैं। अब मैं इसको समझने की कोशिश कर रही हूँ कि मेरा ये वाला एरिया इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, आई डोंट नो, मे बी इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग है, या फिर मेरा हो सकता है ये वाला पॉइंट, ये भी मेरे इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग हो सकता है ना। ये मेरा इंफिनिटी तक जा रहा है नेगेटिव, ये पॉजिटिव इंफिनिटी तक जा रहा है, ठीक है। अब मुझे चेक करना है। इसको चेक करने के लिए व्हाट आई विल डू, पहले मैं देख लेती हूँ अगर इफ माई एक्स इज इक्वल्स टू 1, इक्वल्स टू नहीं लेते हैं, हम ले लेते हैं लेस देन 1, क्योंकि मुझे 1 से कम देखना है। मुझे 1 से कम देखना है पहले, लेस देन 1 है, देन एफ डैश एक्स इक्वल्स टू, हम इसकी वैल्यूज पुट कर लेते हैं। से हम कुछ भी ले लो, 1 की जगह आप ले लो लेस देन 1 में भी 0.5, है ना। अगर मैं फिर 0.5 लेके करके सॉल्व करके दिखा देती हूँ, या आप उसको भी नहीं करो तो एग्जाम में आई एम नॉट इंटरेस्टेड कि आपकी क्या वैल्यू आ रही है ना। आई एम ओनली इंटरेस्टेड इन द साइन। अगर मैंने इसको सॉल्व किया, मेरे इस डिफरेंशिएशन के अंदर मेरा ये है, इसको चेक करो, इसके अंदर मेरा 6 तो 6 ऐसे ही रहेगा। ये x माइनस 1 मीन्स मेरा x माइनस 1, समथिंग विच इज लेस देन 1, माइनस 1 वुड बी माइनस, ये x माइनस 2, ये भी मेरा माइनस में साइन रहेगा, ठीक है। नहीं यार, एक मैं आपको फिर एक वो लेके ही बता देती हूँ, ठीक है। अब शायद क्लैरिटी आ जाएगी अगर कंफ्यूजन हो रहा है तो। ये है 0.5 लेके चले हम, क्योंकि लेस देन 1 लेके चल रहे हैं, तो मेरा क्या बना, 6 तो ऐसे ही आ जाएगा, 0.5 माइनस में साइन आ जाएगा, मैं 0.5 माइनस 1 कर रही हूँ उधर, ठीक है। तो मेरा माइनस में साइन आ रहा है, ठीक है। इधर मैं 0.5, स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि मैम आप इसको सॉल्व ही कर दो, ठीक है। 0.5 माइनस 2, ठीक है। तो मैंने इसको सॉल्व किया, अब आप इसके सिर्फ, अब मैं सॉल्व नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ साइन ले रही हूँ, माइनस। अब इसमें देखोगे 0.5 माइनस 2 इज अगेन माइनस। इससे क्या क्लैरिटी आ रही है, माइनस माइनस करोगे तो प्लस, मेरा जो फाइनल आंसर आएगा दैट वुड बी पॉजिटिव विच इज मोर देन 0, ठीक है। अगर ये है सो माय फंक्शन वुड बी इंक्रीजिंग। मैंने अभी आपको ये कंडीशन बताई थी ऊपर, अगर ये मेरा मोर देन 0 है तो फिर मेरा इंक्रीजिंग है फंक्शन उस इंटरवल पे, ठीक है। तो हमें क्लैरिटी आ गई है, मेरा इंक्रीजिंग है कहाँ पे, जब मेरा लेस देन 1 है। लेस देन 1 कहाँ पर है, यहाँ पर, तो इट मीन्स ओवर हेयर इट वुड बी इंक्रीजिंग, 1 से इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी तक हमारा ये इंक्रीजिंग है। अब मैं कंडीशन दूसरी चेक करती हूँ मेरा, क्योंकि ये इंटरवल भी चेक करना है। इफ 1 हैज एन x लेस देन 2, देन, इस क्वेश्चन में थोड़ा टाइम लगेगा, एक क्वेश्चन है करा रही हूँ स्टार्टिंग में, उसके बाद सब बहुत जल्दी जल्दी हो जाएंगे। ये आपका x के लिए आप इस कुछ भी पॉइंट ले लो, जैसे 1.5 ही ले लीजिए, 6, अगेन आपको इसकी वैल्यू से पुट करिए, 1.5 माइनस 1
1.5 माइनस 2 आप सॉल्व करेंगे, इधर 6 आएगा, इधर वैल्यू पॉजिटिव आ जाएगी, है ना, इधर आपकी वैल्यू नेगेटिव में आ गई, तो आपका टोटल क्या आ गया, नेगेटिव में आ गया। नेगेटिव में आ गया मीन्स लेस देन 0 हो गया, सो माय फंक्शन वुड बी डिक्रीजिंग। ये कह रहा है मेरा ये फंक्शन जो होगा ये वाला डिक्रीजिंग है, यहां से यहां तक। इज इट क्लियर? नाउ कंसिडर अनदर पॉइंट, अब मुझे इसके बाद वाला चेक करना है। इफ माई एक्स इज मोर देन 2 देन f2, आगे 2, 2 माइनस 1, मैं इसी वाले हम इस वाले फंक्शन में लिख रही हूँ, इसमें लिख के देख रही, ये 2 माइ ओ सॉरी, मोर देन 2 लेना है तो आई कांट टेक इट 2, मोर देन 2 लेने के लिए मैं इसको 3 मान लूं, या 2.5 जो भी लेना है, ये 6, 3 माइनस 1, यहाँ 3 माइनस 2, राइट, मेरा आ गया 6, इधर मेरा आएगा पॉजिटिव, इधर भी मेरा पॉजिटिव, इट मीन्स मेरा फाइनल पॉजिटिव आ गया विच इज मोर देन 0, सो माई फंक्शन f इज इंक्रीजिंग। आई थिंक इज क्लियर, यहां मेरा ये इंक्रीजिंग हो गया है, यहाँ 2 के बाद। क्लियर यहां तक? तो मैं कह सकती हूँ 10 f इज इंक्रीजिंग। एग्जाम में प्रॉपरली इसको पूरा इंक्रीजिंग ही लिखना, ऐसे सिंपल में मत लिखना। इंक्रीजिंग ऑन माइनस 1 एंड टू इंफिनिटी, एंड इतना क्लियर कि यहां तक तो इंक्रीजिंग है, एंड इज डिक्रीजिंग, इज डिक्रीजिंग ऑन 1 to 2, इस वाले इंटरवल पे एफ जो है इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीजिंग in the interval from minus infinity to 1 and 2 to infinity, and is decreasing on 1 and 2, यहां से यहां डिक्रीज हो रहा है, यहां से यहां, इधर और इधर इंक्रीज हो रहा है। इज इट क्लियर? क्वेश्चन ने यही पूछा था आपसे, फाइंड द इंटरवल्स, इंटरवल्स बताओ, आपने बता दिए, इंक्रीजिंग कब है डिक्रीजिंग कब है। ओके नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड, अब थोड़ा फास्ट समझ में आ भी जाएगा, थोड़ा जल्दी कर लेंगे। फाइंड द इंटरवल्स ऑन विच द फंक्शंस fx is increasing or decreasing, सेम क्वेश्चन है, 3x² माइनस 2x³ ठीक है। इसका सबसे पहले मैं क्या निकालेंगे, डिफ्रेंशिएट कर लेंगे, डिफ्रेंशिएट करके 12 प्लस 6x माइनस 6x²। अब मैं इसको सॉल्व करना चाहूँ तो मैं कर सकती हूँ, -6 बाहर ले लूं तो मेरा ये आ गया x², मैं इसको अपोजिट लेके चल रही हूँ, ये माइनस का तो इधर माइनस बाहर आ गया, तो 6 का x² माइनस x और प्लस -2, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, ऐसे कर सकते हैं। अब मैं इसको सॉल्व कर लेती हूँ, इसको सॉल्व कर लोगे तो आपका आ जाएगा -6 x+1 और x-2, सिंपल। ये मेरे क्रिटिकल पॉइंट्स आ रहे हैं। अगर मैं f' जहां मेरा 0 होना चाहिए, क्रिटिकल स्टेशनरी पॉइंट्स या क्रिटिकल पॉइंट्स, वहां मैंने 0 पुट करा, इट गिव्स x = -1 आ रहा है और x = 2 आ रहा है, ठीक है। अगेन मैं इसको एक अगर लाइन ग्राफ पे ड्रॉ करती हूँ, मैं मान के चल रही हूँ, ये मेरा -1, 1, ये मेरा 2 हुआ, ठीक है, मैं 2 पॉइंट्स मान के चल रही हूँ। अब मेरे को, अब इसके ये देखना है कि कौन से इंटरवल्स है जहाँ पे इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, मेरे कौन से इंटरवल्स बन रहे हैं। एक मेरा इंटरवल ये बन रहा है, एक इंटरवल मेरा बन रहा है ये वाला जो इन्फिनिटी तक जा रहा है, एक मेरा बन रहा है ये वाला जो नेगेटिव इन्फिनिटी तक जा रहा है, ठीक। मुझे 3 इंटरवल्स को समझना है क्या क्या सिनेरियो है। चलिए मैं लिख दूंगी, इफ x इज लेस देन -1, मेरे इस -1 से कम वाला, मैं इस वाले को स्टडी करना चाह रही हूँ पहले, है ना, -1 है, then f dash x is equals to
अब मैं इसके अंदर सिंपल ये वाले के अंदर मैं नेगेटिव वो डाल देती हूँ कि क्या क्या रहेगा। हमें माइनस साइन तो इसमें स्टार्टिंग में ही है, माइनस जो 6 आई। फिर इसके अंदर अगर -1 से भी कम है तो -1 से कम, मतलब हम इसमें आपको फिर मैं एग्जाम्पल लेके ही बता देती हूँ बच्चों। -2 लेके चल रही हूँ, तो -6, -2 +1, -2 -2। सॉल्व करोगे तो माइनस साइन आया इधर, इधर फिर से माइनस आया, इधर फिर से माइनस आया, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, फाइनल आपका माइनस आया, विच सेज लेस देन 0। सो f is डिक्रीजिंग, डिक्रीजिंग ऑन कहाँ, इंफिनिटी से लेके 1, -1। ठीक है, अब इसी चीज के अंदर हम चेक कर लेते हैं नेक्स्ट लेवल, इंटरवल। नेक्स्ट इंटरवल में कह रहा है -1 से x के बीच में हमें चेक करना है। इसके लिए भी आप f(x) देख लो देन, कोई भी हम वैल्यू ले लें, 1 ले लो, -6 तो रह गई, 1 +1, क्योंकि हम इसके अंदर वैल्यू पुट कर रहे हैं, इसके अंदर +1, 1 -2। सॉल्व कर लो, माइनस का साइन आएगा, प्लस आएगा, माइनस आएगा, टोटल हमारा क्या आ गया, प्लस आ गया। प्लस आ गया मीन्स मोर देन 0, तो मीन्स f इज इंक्रीजिंग ऑन इंटरवल -1 and 2। ठीक है, ये वाला मेरा इंक्रीजिंग है, इधर इधर डिक्रीजिंग है। अब मुझे चेक सिर्फ इस वाले को करना है, इफ x इज मोर देन 2, f' 2 से ज्यादा 3 मान के चलो, -6, 3 + 1, 3 -2। आपने इसको सॉल्व किया, आपका आया माइनस प्लस प्लस, तो आपका फाइनल माइनस आ गया, विच इज लेस देन 0। सो f इज इंक्रीज, सॉरी, लेस देन 0 है, f इज डिक्रीजिंग ऑन इंटरवल 2 to infinity। ठीक है, यहाँ पे हमारा डिक्रीजिंग आ गया इंटरवल में। आई थिंक यहाँ तक क्लियर हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इजी है। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज डिटरमाइन द इंटरवल्स ऑन विच फंक्शंस। मैं भी इसके थोड़े और फंक्शन एक क्वेश्चन करा लेती हूँ, ये बहुत इजी है, आपको समझ में आ जाएगा जल्दी ही। डिटरमाइन द इंटरवल्स ऑन विच फंक्शन f(x) equals to x power 4 minus 8x power 3 plus 22 x power minus 24x plus 21। अब मुझे बताना है इस कौन से इंटरवल्स में इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग रहेगा ये फंक्शन। ठीक है, इसका आप सबसे पहले आप डेरिवेटिव निकाल लोगे, इसका डेरिवेशन निकालोगे, 4x³ माइनस 24x² प्लस 44x माइनस 24, इसका 0 हो गया, ये हमारा निकल गया। अब इसको सॉल्व कर लो, सिंप्लीफाई कर लो, सिंप्लीफाई करके आपका वैल्यूज आ जाएंगी, मैं डायरेक्टली बता देती हूँ। वैसे तो सिंपल है, 4 को आप इसका कॉमन ले लेना, x³ आ जाएगा, फिर x³ को आप, मैं सॉल्व कर देती हूँ इसको, कभी बच्चों स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आती है। -6x² प्लस 11x माइनस 6। ठीक है, सिंपल इसमें 4x³, और मैं इसको लिख सकती हूँ, दो तरीके हैं इसको सॉल्व करने के, मैं आपको पहले एक सिंपल बता देती हूँ, -6x² माइनस 1x² कर सकती हूँ प्लस x²। सॉरी, एक मिनट, ये -x², ये माइनस का साइन है। अब मैं 11 को ऐसे लिख सकती हूँ 5x प्लस 6x, और -6 तो है ही। अब मैंने इसको सॉल्व किया, x बाहर ले लिया, कॉमन लिया मैंने, x² तो मेरा आ गया x -1, -5x बाहर कॉमन लिया तो x +1, इधर मैंने लिया +6, तो x -1। एक मिनट, ये मैंने तो, ठीक है, सॉल्व कर लिया, इसका आ गया 4, x -1 कॉमन ले लिया, तो मेरा आ गया x² माइनस 5x प्लस 6। वरना डिवीजन वाले मेथड से भी जो अपने 11 12 बचपन से करते आ रहे हो इन द प्रीवियस क्लासेस, यू मे यूज दैट। एक दो क्वेश्चंस में आगे के उसी उसी मेथड से करा दूंगी, सो दैट यू कैन गेट टू अवेयर ऑफ द बोथ द मेथड्स।
ठीक है, आपने यहाँ तक करा, फिर आपने इसको 4, आपने x माइनस 1, अभी आपका क्वाड्रेटिक तो आपको सिंपल है ही, आप कर ही लोगे, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x प्लस 6, आप इसको सॉल्व करेंगे तो 4x माइनस 1, इधर x माइनस 3 माइनस 2x माइनस 3, सॉल्व कर लो, 4x माइनस 1, x माइनस 2 और x माइनस 3 इज योर इसका एफ डैश एक्स का सिंप्लीफाई करने के, सिंप्लीफाई इसलिए कर रहे हैं हमें प्लस माइनस अब सेट करने में इजी हो जाता है। अगर आप इसके अंदर सेट कर लो एफ डैश एक्स इक्वल्स टू 0, आपकी वैल्यूज एक्स की क्या क्या आ सकती हैं, 1 आएगी, 2 आएगी एंड 3 आएगी, पुट कर दोगे इसके अंदर, ठीक है। अब बस अब आपको बिल्कुल वैसे ही करना है, दीज 3 वैल्यूज लीडर्स टू कंसीडर द 4 इंटरवल्स एज शोन। देखो कैसे, कैसे शोन, आई विल शो यू। ये आपकी इसे 1 मान लो, इसे 2 मान लो, अब ये 3 मान लो, तो एक इंटरवल कौन सा हो गया, ये वाला हो गया, एक इंटरवल ये हो गया, आपको एक इंटरवल्स ये मान लो दोनों अलग अलग, तो 4 इंटरवल्स हो गए हमारे, 1 1 2 3 4। आप 4 इंटरवल्स के लिए आप निकाल लो बिल्कुल जैसे पहले किया है। कैसे, अगर मेरी x लेस देन 1 है तब मेरे f डैश x इक्वल्स टू 4, आप सॉल्व कर लेना, इसके लिए वैल्यू लेस देन 1 है ना, तो ये नेगेटिव में आएगी, ये भी नेगेटिव में आएगा और इसके लिए भी नेगेटिव में आएगा, तो हमारा क्या आ जाएगा, टोटल नेगेटिव में आ जाएगा विच इज लेस देन 0, तो हमारा f क्या हो गया, डिक्रीजिंग, कहाँ पर, माइनस से 1 तक, ठीक है, ये इन्फिनिटी है, ये भी माइनस का, ये प्लस का इन्फिनिटी है ना, ये माइनस इन्फिनिटी से 1 तक रहेगा। अगर मेरी x की वैल्यू 1 और 2 के बीच में, मुझे इस वाले इंटरवल को स्टडी करना है, तब मैं इसको वैल्यू मान लेती हूँ कुछ भी 1.5 मान लूँ, तो भी मेरा 4 आया, ये प्लस माइनस माइनस, टोटल मेरा प्लस का आ गया विच इज मोर देन 0, तो मेरा f क्या हो गया, इंक्रीजिंग हो गया, कहाँ पर, 1 से 2 के इंटरवल पे, ठीक है। अब मुझे आगे थर्ड चेक कर लेती हूँ, टू इफ टू इफ मेरी 2 और 3 के बीच में है, अब मुझे इस वाले को चेक करना है ना, 2 और 3 के बीच में, 2 से 3 के बीच में है, तब मेरा एफ डैश एक्स में कोई सी वैल्यू लेती हूँ, 2.5 ले लेती हूँ, 2.5 लेती हूँ, इसके अंदर मैं पुट करती हूँ, तो भी मेरा ये पॉजिटिव आएगा, ये भी पॉजिटिव आएगा, ये मेरा नेगेटिव आएगा, है ना। 2.5 मेरा जो है 3 से कम ही है तो माइनस में आ जाएगा, तो टोटल मेरा क्या आ गया, माइनस में आ गया। अगर ये माइनस में आ गया इसका मतलब है लेस देन 0 मीन्स एफ इज डिक्रीजिंग, कहाँ पे, 2 से 3 के बीच में, ठीक है। अब हमें फोर्थ इंटरवल भी चेक कर लो, जब मेरा x इज मोर देन 3 है, तब मेरा एफ डैश इक्वल्स टू 4 प्लस, ये भी मेरा प्लस में, ये भी मेरा प्लस में, तो मेरा टोटल आ गया प्लस में विच इज मोर देन 0, तो मेरा एफ क्या हो गया, इंक्रीजिंग हो गया, कब, 3 से लेके इंफिनिटी तक मेरे इस इंटरवल पे। इतना क्लियर है ना। मेरा इसको मैं बोल सकती हूँ जहां भी मेरा इंक्रीजिंग है, मेरा एफ डैश एक्स इज इंक्रीजिंग, मोर देन 0 इज मोर देन 0, मेरा इंक्रीजिंग है, इसको मैं बोलती हूँ अपवर्ड स्लोपिंग, इवन आई टोल्ड यू प्रीवियसली, क्योंकि अब क्वेश्चंस में जरूरत पड़ेगी। हम अभी ब्रेक लेंगे इसके बाद 5 मिनट्स एंड देन विल कम बैक, इधर होगा डाउनवर्ड स्लोपिंग, ठीक है। अगर ये कंडीशंस आती हैं, आप इसको समझो ये अपवर्ड स्लोपिंग है या डाउनवर्ड स्लोपिंग है, इंक्रीजिंग बोल सकते हैं या फिर डिक्रीजिंग बोल सकते हैं। आई थिंक इज क्लियर। चलिए लेट्स टेक द ब्रेक फॉर द 5-10 minutes एंड विल कम बैक।